students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter, which is food for plants and animals. अब हमें पता चल गया कि हम फूड कहाँ से लेते हैं, हम प्लांट से भी लेते हैं और एनिमल्स भी से भी लेते हैं, लेकिन ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है इनका फूड कहाँ से आता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Emma studies in class 5. Her friend does not finish her lunch and water and throw it in the dustbin. One day Emma collects her friend's leftover lunch and water with her. While going back home, she feeds the stray dog with that food and water the plants. What value does Emma shows? Discuss. All living beings have many similar qualities. They all need food, water and air to survive. Animals and plants eat different types of food and acquire it in different ways. तो यहाँ पे एक बात बताई गई है. एमा जो है वो क्लास 5 में पढ़ती है. उसकी जो क्लास में एक क्लासमेट है वो क्या करती है, वो खाना जितना खाना होता है खाती है और बाकी का खाना वो क्या कर देती है, डस्टबिन में थ्रो कर देती है. ऐसे ही वो अपने पानी के साथ भी करती है जो वो घर से लेके आती है. हालांकि हमें जो फूड होता है, जो पानी होता है, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप खाना नहीं खा पा रहे तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे दो. तो वही एमा ने भी किया. जब वो घर आ रही थी उसको कुछ स्ट्रे डॉग्स दिखे, उसने वो खाना उन डॉग्स को दे दिया और पानी का क्या किया, उसने ट्रीज को डाल दिया. Food for plants. Plants need various nutrients for their growth and development. They absorb these nutrients from the soil through their roots. Sometimes fertility of the soil gets depleted because of certain factors. To maintain the level of fertility of the soil, manures and fertilizers are added to soil. तो प्लांट्स को भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए. तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ से ग्रैब करते हैं, सॉइल से वो एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर रूट्स. कभी कभी क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डाउन चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उन प्लांट्स को भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते. इसलिए उनमें क्या ऐड किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स ऐड किए जाते हैं, जिसको हम खाद कहते हैं. What do plants need to make food? We know that plants are found all over the world. They are found in water, land and sea. We find some in cold regions and some in dry, hot regions. The plant in different regions have different requirements according to their surroundings. तो प्लांट जो है ये हमें हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे डेजर्ट्स हो, चाहे ठंडे एरिया हो, चाहे हिली एरिया हो, चाहे प्लेन एरिया हो. ठीक है, तो इनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं. Sunlight for plants. Trees generally grow straight and tall in forests because there is a competition among them to reach higher to get sunlight. They can grow tall only when they grow straight. Creepers and climbers have developed long tendrils. They twine around a support to climb it. They climb upward on the trunk of the trees to reach the sunlight. अब जंगलों में आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, लंबे लंबे ट्रीज़ होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका कंपटीशन चल रहा होता है. जितना लंबा होगा उतना उसको क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी. इवन जो आपके क्रीपर्स एंड क्रॉलर्स होते हैं इनमें भी ये लॉन्ग टेंड्रिल से डेवलप कर लेते हैं. फिर इनको सपोर्ट मिल जाता है तो ये उसके आसपास क्या हो जाते हैं, क्लाइंब हो जाते हैं, अपने आप को लपेट लेते हैं. वाटर फॉर प्लांट्स क्या होता है, इन डेजर्ट्स वी डू नॉट फाइंड ट्रीज बिकॉज दैट इज वेरी ड्राई प्लेस विद लिटिल वाटर. It is very hot there during the day and cold at night. Roots of desert plants go deep to get underground water. Plants lose water through pores of leaves, therefore the desert plants do not have leaves. They store water in their spongy stem which has a thick covering and spines on it. Spines keep animals away from stem. The stem is green and contains chlorophyll. It makes food for the plant. तो डेजर्ट एरिया में आपने देखा जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होता है, लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि दिन के टाइम पे बहुत गर्मी होती है और रात क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. तो जो रूट्स होती हैं डेजर्ट प्लांट्स की वो काफ़ी अंदर जाती हैं, डीप जाती हैं, अंडरग्राउंड जाती हैं पानी की खोज में. प्लांट जो होते हैं ये अपना वाटर लूज करते हैं थ्रू द पोर्स ऑफ लीव्स. ठीक है, तो इसमें आपने देखा होगा उनके प्लांट्स की जगह पे जो लीव की जगह होती है वहाँ से उनके स्पाइंस निकले होते हैं, जैसे कि कैक्टस वगैरह.
Air for plants, mangrove trees grow in swampy areas. The soil does not contain air. Their roots come out of water so as to get air. Leaves of floating plants bear stomata on their upper surface only, which are not blocked by water and remain open to exchange gases. प्लांट्स के लिए एयर भी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए मैनग्रोव ट्री जो है वो स्वैम्पी एरिया में क्या करता है, ग्रो करता है। ठीक है, अब इसकी जो सॉइल होती है इसमें एयर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए आपने इनकी रूट्स को देखा होगा, ये जो जड़ होती है ये ऊपर की तरफ, पानी से ऊपर की तरफ ये क्या कर रही होती है, ग्रो कर रही होती है। Now brainstorm, why is it important for plants to be watered and placed in a well lit and ventilated environment? क्यों? क्योंकि प्लांट्स को सनलाइट भी चाहिए होता है, वाटर भी चाहिए होता है और एयर भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ग्रीन प्लांट्स मेक ग्लूकोज एज फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हेन प्लांट्स स्टोर ग्लूकोज, दिस शुगर इज टर्न्ड इनटू स्टार्च। दिस एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच humans and other animals eat. Plants get energy in the form of sunlight, carbon dioxide from the air, minerals and water from the soil to make their food. Only green leaves, which have a pigment called chlorophyll, can make their own food. Plants use the energy from food to grow and repair themselves. तो plants के बारे में आप जाने गए होंगे, इनका जो फूड होता है वो कहाँ बनता है, इनके लीव्स में बनता है, इसलिए फूड को इनका जो लीव्स जो होते हैं उनको किचन भी कहा जाता है। प्लांट्स होते हैं ये एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, और मिनरल एंड वाटर लेते हैं किससे, सॉइल से। इन वार्म वेदर प्लांट्स नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर एंड सनलाइट एंड प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो एंड बी हेल्दी। पीपल हु ग्रो प्लांट्स सच एज फार्मर्स और गार्डनर्स रेगुलरली पुट मैन्योर टू फर्टिलाइज द सॉइल एंड मेक श्योर दैट इट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स डज नॉट go down. In winter, most plants find it difficult to make food because there is less sunlight and water is often frozen under the ground. As this time there is less food making activity and store food is used. Tree growth is greatly reduced at this time. Some trees also shed all their leaves. तो हमारी तरह प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब वो अपनी खेती वगैरह ग्रो करते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स वगैरह डालते हैं ताकि उनकी जो फसल है वो अच्छी हो सके। विंटर्स में क्या होता है, जो ये फूड मेकिंग प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, प्लांट्स में स्लो हो जाता है, क्योंकि विंटर्स में सनलाइट बहुत कम मिलती है। ठीक है, और वाटर जो होता है अंडरग्राउंड वो फ्रीज हो जाता है। इसमें वो जो अपने अंदर जो उन्होंने अपना फूड स्टोर किया होता है, एनर्जी स्टोर की होती है, उसको वो यूज़ करते हैं। Plants that cannot make food, plants that do not have chlorophyll cannot make their own food. These are non-green plants. Some non-green plants like dodder, certain mushrooms, mosses and certain fungi feed off other plants and animals. They are known as parasites. The plants or animals that live ऑन इज़ नोन एज द होस्ट। तो आपने देखा भी होगा जो मशरूम्स होते हैं वो ज़्यादातर पेड़ की जड़ों पे या पेड़ के तने से चिपके हुए होते हैं, मॉसेस वगैरह होते हैं, फंगाई होते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद का इनका क्लोरोफिल नहीं होता, ये खुद से खाना नहीं बना पाते, इसलिए इनको एक होस्ट चाहिए होता है जिससे ये उसका क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेते हैं। Insects eating plants. These plants are known as carnivorous plants or insectivorous plants. Although these plants make their own food through photosynthesis, they grow in soil which is very poor in minerals like nitrogen, and they need to trap insects to get enough nitrogen for their needs. The Venus flytrap attracts insects into its jaw-like leaf trap by secreting nectars. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोरस होते हैं। ठीक है, आप सुन के इनको आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन प्लांट्स भी इंसेक्ट्स खाते हैं। इनको नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि उनको इनके सॉइल से मिनरल नहीं मिल पाते, तो ये नाइट्रोजन किससे लेते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करके। जैसे जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, इसके जॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीव्स होती हैं जिसमें नेक्टर रिलीज किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उस नेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही वो इनके लीव्स के बीच में आते हैं ये उसको बंद कर लेते हैं। Read more. The trap of the Venus flytrap shuts totally only if the leaf is touched twice in 20 seconds. If a stone or dead insect land on the leaf, it will stay partially closed for about 12 hours and then open out again to let the object fall out.
अब ये कैसे काम करता है, जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो अपना जो पूरी लीफ होती है टोटली शट करता है जब इसको 2 बार टच किया जाता है 20 सेकेंड्स में। फिर जो स्टोन या डेड इंसेक्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है जब उनका जो जूस होता है वो पूरी तरह सक कर लिया जाता है इस प्लांट के द्वारा। Once the insect lands, the jaw clamps shut on it in less than a second. At once, the plant secretes juice that dissolve the insect. If the insect is too big, however, it often sticks out of the leaf, attracting bacteria and molds, which not only decompose the insect but also make the leaf rot and fill off. The hollow leaves of the pitcher plant are filled with nectar. Insects come to feed on this nectar. As they sit on the edge of the pitcher, the lid closes and the insects are trapped inside. The digestive juice of a pitcher plant are so strong that it can dissolve a big chunk of meat within a few days. ऐसे पिचर प्लांट जो होता है वो भी काम करता है, ठीक है। इसके अंदर आपका एक नेक्टर होता है जिसको स्मेल करके या जिसको सूंघ करके जो बटरफ्लाइज हैं या दूसरे इंसेक्ट्स हैं वो आते हैं। फिर जैसे ही इसके एज पे जा कर के बैठते हैं, इसका जो ढक्कन होता है, जो कैप होता है वो बंद हो जाता है और वो जो इंसेक्ट होता है वहीं पर ट्रैप हो जाता है। इसके अंदर से एक जूस निकलता है जो कि उसको डिसॉल्व कर देता है। Sundew plant have a gel-like substance at the tip of the tentacles that cover the leaves. If an insect flies too close to these, they stuck to the plants and is eaten. तो इस तरह का आपका संडू प्लांट होता है जिसके आपने देखे होंगे जेल लाइक सब्सटेंस होते हैं इनके टेंटेकल्स में, इनके टिप्स में। जैसे ही कोई इंसेक्ट इनके पास आता है ये बंद कर लेते हैं, क्लोज हो जाते हैं और वो जो इंसेक्ट होता है वो उसमें स्टक हो जाता है और उसको खा लिया जाता है प्लांट के द्वारा। ब्रेनस्टॉर्म Although the plants like sundew, pitcher plant and Venus flytrap are green, they are insectivorous. Why? अब ऐसा कहा जाता है कि ये जो संड्यू पिचर प्लांट है और वीनस फ्लाई ट्रैप है ये ग्रीन है, लेकिन फिर भी ये इंसेक्टिवोरस क्यों है? मतलब कहा जाता है कि ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो उनमें क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं बनाते? ये इंसेक्ट्स पे क्यों डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए? तो आपको रीज़न फाइंड आउट करना है और पता लगाना है और बताना है। अब हम बात करते हैं फूड फॉर एनिमल्स। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर फूड लाइक प्लांट्स डू, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हेंस दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेटेरोट्रॉफ्स। डिपेंडिंग ऑन देयर फूड हैबिट्स, एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। अब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं लेकिन एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, तो उनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। पहले हैं हर्बीवोरस एनिमल्स। एनिमल्स दैट ईट प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स। काउज, कैमल्स, बफेलोज, गोट, डियर एंड हॉर्सेस ईट ग्रास, ग्रीन लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट। तो ये हर्बीवोरस कहलाते हैं। हर्बीवोरस किनको कहते हैं? जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। लायंस, टाइगर्स, ईगल्स एंड वुल्व्स आर प्राइमरीली हंटर्स दैट हंट लाइव प्रे। ये प्लांट्स को नहीं खाते, ये दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, इसलिए उनको कार्निवोरस कहा जाता है। ओमनिवोरस एनिमल्स, एनिमल्स दैट ईट बोथ plants and animals are called omnivorous animals. Bears, dog, crow etc. eat both plants and animals. तो आपको पता ही है omnivorous animals उनको कहा जाता है जो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं। Scavengers animals, animals that eat dead animals or leftover of animals hunted by carnivorous animals are called scavengers animals. Jackals, hyenas and vultures eat the remains of dead or hunted animals. स्कैवेंजर्स वो एनिमल्स होते हैं जो खुद से हंटिंग नहीं करते, जो दूसरे एनिमल्स होते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा जो एनिमल्स हंट करके उनको खाया जाता है, फिर उनकी जो रिमेनिंग्स होती हैं उनको स्कैवेंजर्स के द्वारा ख़त्म किया जाता है। द फूड चेन. Food chain are sequencing of organism in which each organism is food for the next. In food chain, plants are the first to be consumed. For example, an insect is eaten by a frog, the frog is eaten by a snake, and the snake is eaten by an eagle or a hog. What does the insect eat? Plants, of course. Thus, we have a food chain. Food chains overlap since most organisms have more than one item on their menu. Also, one organism is often eaten by many other organisms. Food chain operates both in water and on land.
लैंड। तो फूड चेन के बारे में बात कर लेते हैं। फूड चेन एक सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिज्म का, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जाता है, फिर उसको तीसरे के द्वारा। तो ये जो फूड चेन है वो चलती रहती है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को किसके द्वारा खाया गया? एक ग्रास हॉपर के द्वारा खाया गया। ग्रास हॉपर को किसके द्वारा खाया गया? फ्रॉग के द्वारा। फ्रॉग को खाया गया किसके द्वारा? स्नेक के द्वारा। स्नेक को खाया गया किसके द्वारा? ईगल और हॉक्स के द्वारा। तो ये फूड चेन कहलाता है और बनता है। Read more. Food chains were first introduced by the American Arab scientist and philosopher Al Jihaz in the 9th century and were later popularized in a book by Charles Elton published in 1927. तो ये फूड चेन है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अफ्रीकन अरब साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको बुक में पब्लिश किया गया था, पॉपुलराइज किया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। इन वाटर, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाया गया। वाटर्स में फाइटो प्लैंकटन होते हैं जिनको जू प्लैंकटन के द्वारा खाया जाता है, फिर इनको स्मॉल फिशेस के द्वारा खाया जाता है और उनको बिगर फिशेस के द्वारा खाया जाता है। लैंड में प्लांट को ग्रास हॉपर के द्वारा खाया जाता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग के द्वारा, फ्रॉग को स्नेक के द्वारा और उसको पीकॉक के द्वारा। Now the food web. In community, very few animals eat only one type of food. For example, a tiger does not depend only on a deer for its food. It can eat many other types of animals like rabbits, cows, and sambars. Similarly, most foods are eaten by more than one type of animal. For example, grass is not only eaten by a deer, it is also the food of a cow, buffalo, and elephants. Thus, many interconnected food chains exist in a community. The network of interconnected food chain is called a food web. For example, plants and plant products are eaten by man, goats and rabbits. Goats and rabbits are eaten by man. All the three rabbits, sheep and man are eaten by lion. अब हम बात करते हैं फूड वेब के बारे में, फूड का जो जाल होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक एनिमल जो होता है वो एक ही तरह का खाना नहीं खाता। जैसे लायन जो है वो सिर्फ डियर पर डिपेंड नहीं होता, उसको अगर मौका मिले तो वो काऊ भी खाता है, वो सांबर भी खाता है और वो रैबिट्स को भी खाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनको अलग अलग एनिमल्स के द्वारा खाया जाता है। इवन जो ह्यूमन्स होते हैं, ह्यूमन्स भी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, वो प्लांट्स को भी खाते हैं, वो जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको भी खाते हैं। Brushing up, plants make their own food by the process of photosynthesis. Based on the kind of food eaten by animals are classified as herbivores, carnivores, omnivores, scavengers. Food chain and food web maintain a healthy balance in population of living things. Food chain are sequence of organisms in which each organism is food for the next. The network of interconnected food chain is called a food web. तो इस चैप्टर में हमने प्लांट्स की ईटिंग हैबिट के बारे में, कैसे वो अपना खाना बनाते हैं ये हमने जाना, और जो एनिमल्स हैं वो कैसे दूसरों पर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए ये भी हमने जाना। साथ ही साथ फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है ये भी हमने समझा। Now let's practice now. Tick the correct option. In forest there is a competition among trees to reach the higher to get the sunlight. Sunlight को पाने के लिए उनमें होड़ होती है, कंपटीशन होता है आगे बढ़ने का, टॉलर उगने का। Fill in the blanks with suitable words. Plants need various dash for their growth and dash. Plants को क्या चाहिए होता है? Plants को various nutrients चाहिए होते हैं for their growth and development. Write T for true and F for false. All plants can make their own food. No, it is false. सारे के सारे जो plants हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। Answer the following questions. Define photosynthesis. What do plants need for photosynthesis? So photosynthesis is a process by which a plant make their own food. They need water, air, sunlight and minerals for making their food. Fun time, make a food web by interlinking the following animals according to their feeding habits. तो feeding habits के according आपको इन animals को क्या करना है, interlink करना है। Dig further. If food chain does not exist in a community, then what would be its consequences? Discuss with your friend. अगर फूड चेन एग्जिस्ट ही नहीं करती कम्युनिटी में तो फिर क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ये आपको बताना है। Do something good. Why people say that do not pluck the leaves or fruits of little plants, and when you make food, give first chapati to a cow. Our plants and animals are very important to us. तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि हमें एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए? ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब भी हम खाना बनाएं तो पहली रोटी जो है वो काऊ के, गाय के नाम की निकालनी चाहिए?
क्या एनिमल्स एंड प्लांट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? I can do this, collect picture of different plants and animals, link them up into food chains and food webs on a chart paper, name all the members of a particular chain. आपको पिक्चर कलेक्ट करनी है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स की, फिर उनको लिंक करना है आपस में, फूड चेन मतलब आपको एक बनानी है, ठीक है, और फिर उस पर्टिकुलर चेन में जितने भी मेंबर्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे और इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस भी करेंगे।